Hello dear friends, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss about how a matter can change its states. Now, uh, when we talk about the effect of temperature on the motion of molecules, this is what we studied in the previous lectures as well. कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी सब्सटेंस का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है then molecules gain internal kinetic energy. तो molecule क्या करते हैं, means on increasing the temperature molecules gain kinetic energy और उस kinetic energy का result ये होता है कि molecules की जो intermolecular spacing होती है that increases, means कि उनके दरमियान जो separation होती है वो separation increase हो जाती है. Same way, if the temperature is decreased, then what will happen? Molecules will lose their internal kinetic energy और इस काइनेटिक एनर्जी लूज करने का रिजल्ट ये होगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. दैट मींस कि दिस इज द कांसेप्ट व्हिच वी स्टडीड इन द थर्मल एक्सपेंशन कि अगर टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो सब्सटेंस एक्सपेंड होता है. सेम लाइक ऑन डिक्रीजिंग द टेंपरेचर सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है. नाउ दिस कांसेप्ट वी बी यूजिंग दिस कांसेप्ट इन दिस टॉपिक एज वेल. अब हम आते हैं कि देखिए when we talk about the states of matter, generally we say that matter exists in three states. मतलब these are the three commonly existing states of matter: solid, liquids and gases. Now when we talk about the changing state, that means that a solid can be converted into liquid and same way a liquid can also be converted into solid state. या फिर ये हो सकता है a liquid can be converted into gas state या फिर जो गैस है that can be converted back into the liquid state. Now there are few substances उनमें ये होता है कि they can directly change their state from the solid state to the gas state. Means के normally हो रहा होता है कि substance means के if it's in solid state, first of all it changes its state to the liquid, then it goes to the gas state. But there are few substances जिनमें ये property होती है कि they can directly be changed from the solid to the gas state. Same way they can also be converted back from the gas state to the solid state. Means that these are the different possibilities in which a matter can change its state. Now, if a matter is changing its state from solid to liquid, so that process of changing state of matter is called melting. Means के melting क्या होता है? This is the process in which a solid changes its state from the solid changes its state into a liquid state. Same way, if a liquid is changing its state to the solid state, so that process is called a freezing. मतलब freezing में क्या होता है कि liquid जो होता है it changes its state to a solid. Same way, if there is a liquid and that liquid is being changed to the gas state, so that process is called a vaporization. Now vaporization जो होती है ये दो different ways में हो सकती है. कौन कौन से different ways में होती है? या तो ये boiling होगी या फिर evaporation होगी. Both of these two processes are the vaporization. Means के दोनों process में ये होता है कि liquid जो है वो अपनी state change करता है into the gas state. But there is a difference in between them. So we'll be discussing then what is difference between boiling and evaporation. Now the last step in which if a gas is changing its state to a liquid state, so that process is called condensation. So these are the four processes which generally happen to all the substance. जितने भी substance होते हैं generally they are undergoing these four processes. But as I discussed, there are few substances which can directly change their state from the solid to gas. So if a substance is changing from state from solid to gas directly, so that process is called sublimation. मतलब sublimation क्या होता है? ये वो process होता है जिसमें substance liquid state को bypass करके directly from solid to gas state में convert हो जाता है. Same way, if that gas is being directly converted to the solid state, means के जो reverse process होता है sublimation का, that process is called deposition. Now these are the different processes in which a matter can change its state. Now we have discussed the different processes. अब देखिए in process में से if the solid is being changed into liquid या फिर liquid is being changed into the gas state,
तो ये जो प्रोसेस होंगे जिनमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस, तो ये वो प्रोसेस होते हैं। इन दीज प्रोसेसेस जो सब्सटेंस होता है इट एब्सॉर्ब्स द थर्मल एनर्जी, मतलब ये कि इन प्रोसेस के अकर होने के लिए thermal energy is being supplied to the substances, only then it can undergo these processes. कौन कौन से प्रोसेस? मेल्टिंग, वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन। ये वो प्रोसेस है मींस के इनमें सब्सटेंस क्या करता है, थर्मल एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। सेम वे जो रिमेनिंग प्रोसेस है, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड डेपोजिशन, सो दीज आर द प्रोसेसेस इन विच सब्सटेंस रिलीजेस द थर्मल एनर्जी। मतलब ये कि ये प्रोसेस तब होते हैं जब सब्सटेंस की जितनी भी थर्मल एनर्जी होती है वो लूज करता है थर्मल एनर्जी, ओनली देन इट्स पॉसिबल अ गैस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड और अ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, या फिर डायरेक्टली अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट। Now this is important point, means ke you must have an idea ke which are the processes in which substance absorbs the thermal energy और कौन से process है जिसमें वो thermal energy gain करता है, because sometimes in the exam you are being asked to mention ये कौन से process है जिसमें thermal energy substance absorb करेगा और कौन से में release करेगा। Just like this is an example. In this example this is mentioned, these four processes are mentioned. आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन से दो प्रोसेस होंगे जिसमें जो सब्सटेंस है एनर्जी टेक इन मींस के इट विल एब्सॉर्ब द एनर्जी, और कौन से दो प्रोसेस हैं जिसमें से एनर्जी गिवन आउट मींस इट विल रिलीज द एनर्जी, तो वो बताना है। अब देखिए एज वी हैव डिस्कस्ड कि एब्सॉर्ब एनर्जी कौन कौन से प्रोसेस में सब्सटेंस करता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग। सो दीज आर द टू प्रोसेसेस जिसमें सब्सटेंस थर्मल एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। सेम वे दीज आर द टू प्रोसेस फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन जिसमें वो थर्मल एनर्जी को रिलीज कर रहा है, मींस के यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी इज गिविंग आउट। सो एनर्जी टेकन इन किस में होगी, 1 और 2 में, और रिलीज किस में हो रही है या गिवन आउट किस में हो रही है, 3 और 4 में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ मूविंग टू द इन डिटेल, अब ये जो प्रोसेस है इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज मेल्टिंग। अब देखिए मेल्टिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्या होता है मेल्टिंग, this is the change of state from solid to liquid। अगर कोई substance है which is initially in solid state and it is changing its state from the solid to liquid, तो जिस process के थ्रू ये change occur होती है, जिस process के थ्रू matter की state change करता है, that process is called boiling। now ये जो boiling होती है it occurs at a definite or a constant temperature। मतलब ये कि ऐसा नहीं है आप solid को heat up करना start करें और वो boil होना start हो जाएगा, सॉरी मेल्ट होना start हो जाएगा। melting कब start होती है, when it reaches a particular temperature, और जिस particular temperature पर ये melting का process start होता है that temperature is called a melting point। मतलब ये कि अगर substance change हो रहा है from solid to liquid state, मेल्टिंग का प्रोसेस उस वक्त स्टार्ट होगा जब वो सॉलिड अपनी पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट को रीच करेगा। एवरी डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, तो जब वो अपने उनका जो टेम्परेचर है मींस के इन दिस प्रोसेस दे विल हीट इज बीइंग प्रोवाइडेड। जब वो टेम्परेचर हीट का प्रोवाइड होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा व्हेन दैट टेम्परेचर रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट देन दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग स्टार्ट, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नाउ ये जो मेल्टिंग होती है दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जैसे ही मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके बाद जो टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा होता है दैट इंक्रीज स्टॉप्स। मतलब ये कि if you are providing thermal energy in order to change the state of a substance from solid to liquid, so that thermal energy will increase the temperature। वो थर्मल एनर्जी क्या कर रही होगी, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही होगी। लेकिन जैसे ही मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर जहां था वहीं रुक जाएगा, मींस के मेल्टिंग पॉइंट पर आके रुक जाएगा। अब ये क्यों रुकता है, देयर इज अ रीजन। सो at the end of these processes we'll discuss that reason as well कि क्यों ऐसा हो रहा है कि even though you are providing the thermal energy लेकिन वो thermal energy उस टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही होती। Important thing is that कि during this process जो temperature है that remains constant, ठीक है ना। Now the last point about this melting is that as this is the process
in which substance absorb the thermal energy. That's why this is called a heating process. मतलब ये कि melting का process होने के लिए substance जो होता है उसको external energy provide की जाती है, only then melting process जो होगा वो start हो जाएगा. Now these are the some commonly melting points for the some commonly used substances. इसमें जो सबसे important है that is ice. मतलब ये कि अगर आप ice को melt करना चाहते हैं, उसको water में convert करना चाहते हैं, so that is possible when ice का जो temperature है that reaches to 0 degrees Celsius. ठीक है, इसी तरह बाकी substance है. Now moving कि ये मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट किस तरह होता है, हम थोड़ा इसकी जो ग्राफिकली हम देख लेते हैं, देन वी विल हैव एन आइडिया कि ये मेल्टिंग का प्रोसेस होता किस तरह है. नाउ जस्ट कंसीडर, हम जो मेल्टिंग का प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं, वी आर टेकिंग आइस एज एन एग्जांपल. मींस के हमने क्या किया, हमने आइस ले ली which is a solid form. Now we will see how this ice is being melted, yeah, this how this ice is being converted into water. Now first of all, just consider कि उस आइस का जो टेम्परेचर है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये कि व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट एट दैट टाइम आइस का जो टेम्परेचर है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस. नाउ आइस किस तरह मेल्ट होगी, इफ यू आर टेकिंग दैट आइस फ्रॉम द फ्रीजर, आपने उसको बाहर रख दिया, एनवायरनमेंट में रख दिया, रूम में रख दिया, देन व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप आइस को रूम में रख देंगे, then it's the property of heat, it's the property of thermal energy, it always flows from the higher temperature object to the lower temperature object. That means in this case what will happen, जो सराउंडिंग की हीट है दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू द आइस. तो जैसे ही आइस में वो हीट फ्लो करेगी तो आइस का जो टेम्परेचर है इट विल स्टार्ट राइजिंग, बिकॉज इन दिस केस आइस का टेम्परेचर लोअर है. तो जैसे ही ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग तो इस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. मींस के इनिशियली इट वाज एट -10, नाउ दिस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा. व्हेन दिस टेम्परेचर विल रीच टू 0 डिग्री, so 0 degree is the melting point of the ice. इसका मतलब ये है जैसे ही टेम्परेचर 0 पे पहुंचेगा then what will happen, जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. now जैसे ही मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, as we discussed in the previous slide, कि during this process जो फर्दर राइज इन टेम्परेचर होगा वो नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा. इवन दो ice will be absorbing the energy from the surrounding, लेकिन वो एनर्जी जो थर्मल एनर्जी अब वो टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करेगी. अब जो टेम्परेचर था इट विल स्टॉप एट 0 और आइस क्या होगी, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग टू द वाटर. इसका मतलब है प्रीवियस पोर्शन में अगर आप देखें फॉर्म P to Q, सो कौन से फॉर्म में सब्सटेंस, दैट इज ओनली इन सॉलिड फॉर्म. उसका टेम्परेचर तो राइज कर रहा है लेकिन इस दिस सब्सटेंस इज स्टिल इन सॉलिड फॉर्म. लेकिन जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट उसकी रीच हो गई, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्टेन हो गई, देन व्हाट विल हैपन, दिस आइस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वाटर. अब जब ये वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, फर्स्ट थिंग इज दैट इसका टेम्परेचर फर्दर राइज नहीं करेगा. सेकंड थिंग इज दैट इन दिस पोर्शन जो सब्सटेंस होगा इट विल हैव बोथ ऑफ दीज टू स्टेट्स. वो लिक्विड स्टेट भी होगी और सॉलिड स्टेट भी होगी. क्यों होगी लिक्विड और सॉलिड स्टेट, बिकॉज आइस मेल्ट हो रही है. तो जो आइस, जो पोर्शन ऑफ द आइस मेल्ट होता जाएगा दैट विल बी कन्वर्टेड इन वाटर, बट स्टिल एक साथ सारी आइस मेल्ट नहीं होगी, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम. तो जितनी देर के लिए कंप्लीटली आइस मेल्ट नहीं होती, दैट मींस के फॉर दैट पोर्शन, फॉर दैट टाइम वी विल बी हैविंग both of these two states. मतलब है कि during the melting process substance जो होगा वो liquid state में भी होगा और solid state में भी होगा. अब ये melting का process चलता रहेगा. When it will reach to point R, so R is the point at which complete ice is being melted. Means के अब जितनी भी ice थी, now that ice is converted into the water. अब जब ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, अब देखिए मेल्टिंग का प्रोसेस स्टॉप हो गया. अब मेल्टिंग का प्रोसेस स्टॉप हो गया, but still that water is absorbing the heat from the surrounding, because इस water का टेम्परेचर इस पॉइंट पे still it is 0 degrees. So room का टेम्परेचर डेफिनेटली 20 डिग्री से ग्रेटर होगा. So oh sorry 0 डिग्री से ग्रेटर होगा. तो जब 0 डिग्री से ग्रेटर होगा that means कि still flow of heat will continue, because still there is a difference in the temperature of the two objects. Surrounding का temperature greater है, water का temperature lower है, still heat flow करेगी from the surrounding to the water. तो water का temperature दोबारा rise करना start करेगा. अब ये दोबारा 0 से rise करना start करेगा. अब
जैसे प्रीवियसली टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर दोबारा राइज करेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट अब ये कब तक राइज करता रहेगा, मींस के क्या ये टेम्परेचर इन कंटिन्यूअसली राइज करता रहेगा या इज देयर एनी पर्टिकुलर लिमिट जहां पर जाके टेम्परेचर का जो राइज है वो स्टॉप हो जाए। अब देखिए दैट विल डिपेंड कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, बिकॉज हीट कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, सराउंड का टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 है, it means that there is a difference in temperature of the surrounding and the water, so that's why heat is still flowing। लेकिन ये heat flow करती रहेगी, water का temperature rise करता रहेगा। Now when it will reach to 20 degree in this case, in this particular case, remember this thing, this is not always the case कि वो 20 ही हो room temperature। In this case room temperature is the 20 degree Celsius। तो what will happen at 20 degree Celsius, अब आप देखें जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 20 को रीच कर जाएगा, अब वाटर का टेम्परेचर भी 20 है, रूम का टेम्परेचर भी 20 है, देन व्हाट विल हैपन, फर्दर फ्लो ऑफ हीट या जो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो स्टॉप हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ कि देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप आइस क्यूब को फ्रीजर से निकाल के रख देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो आइस क्यूब जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, ऐसे नहीं होता। वो उसका टेम्परेचर जब सॉरी नॉट मेल्ट बट बॉयल हो जाए, मींस के उसका मेल्टिंग कंप्लीट होगी, उसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होगा, बट एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आके वो स्टॉप हो जाती है, फर्दर इंक्रीज नहीं होता। तो वो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, दैट इज द रूम टेम्परेचर। मतलब ये कि जब टेम्परेचर इस वाटर का रूम टेम्परेचर पे पहुंचेगा देन दिस फ्लो ऑफ हीट विल स्टॉप। सो दिस इज हाउ दिस मेल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट्स। अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, दैट इज द फ्रीजिंग या फिर हम इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब ये फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन होती क्या है, इफ मींस दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। इसमें क्या होता है, a substance changes from the liquid state to the solid state। मतलब ये कि if the substance is a liquid state और अगर वो कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट में, तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्जन होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग या फिर हम इसको कहते हैं solidification। Now this solidification again occurs at a particular temperature just like in melting, और जिस टेम्परेचर पर ये फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन अगर होती है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। मतलब अगेन जितने भी लिक्विड्स होते हैं दे हैव देयर डेफिनेट फ्रीजिंग पॉइंट, हर लिक्विड की डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट होती है, तो जब उनका टेम्परेचर उस पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचता है ओनली देन they start converting from the liquid state to the gas state। Now as in this process thermal energy is being released, means के just like हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि मेल्टिंग और जो वेपराइजेशन होते हैं उनमें थर्मल एनर्जी ऑब्जेक्ट गेन करता है, बट फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन में क्या हो रहा है, thermal energy being lost। मतलब ये कि this is the process in which thermal energy being released by the object, so thermal energy release अगर कर रहा है that's why this is called a cooling process। Now the point which we discussed about the melting कि during the melting जैसे ही melting का process start होता है टेम्परेचर में फर्दर इंक्रीज जो आ रहा था वो स्टॉप होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दिस इज द ट्रू फॉर फ्रीजिंग एज वेल कि जैसे ही फ्रीजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो टेम्परेचर में फॉल आ रहा था, बिकॉज इन दिस प्रोसेस हीट अगर रिलीज हो रही है टेम्परेचर फॉल करेगा, मींस कि अगर आप लिक्विड को फ्रीज करना चाह रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट। आप उसमें से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा देन व्हाट विल हैपन, उस सब्सटेंस में जो फर्दर फॉल इन टेम्परेचर था वो नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कंप्लीट लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए। मींस के जब तक ये फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस चलता रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, इवन दो लिक्विड विल बी एब्सॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंड। मतलब ये अब हीट को रिलीज तो करता रहेगा, सॉरी नॉट एब्सॉर्बिंग बट रिलीजिंग द हीट इन द सराउंडिंग, ये हीट को रिलीज तो करता रहेगा बट वो हीट जो है उस टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करेगी। अगेन इसका भी रीजन होगा डेफिनेटली, वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस। Now this is the freezing curve, ठीक है, this is same as the melting, just opposite होगा because in this case
सब्सटेंस इज लूजिंग द टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर को लूज करेगा, मींस के इनिशियली इट्स लिक्विड स्टेट, वो टेम्परेचर को लूज करता रहेगा। जब वो अपनी फ्रीजिंग पॉइंट को पहुंचेगा, एट पर्टिकुलर पॉइंट जैसे ही फ्रीजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो सब्सटेंस initially it was in liquid state, now it is being started to convert into solid state. So that means in this portion, is this portion जहां पर freezing occur हो रही है, तो substance जो होगा वो liquid state में भी होगा और solid state में भी होगा, because जो liquid convert होता जाएगा solid में, तो वो solid state हो गई, but still there will be some liquid, तो in this portion we'll be having both of two states. इस पॉइंट पर आके क्या होगा, ऑल द लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, सो फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। इफ द हीट इज स्टिल बीइंग रिमूव्ड, या उसका जो टेम्परेचर है अगर वो फर्दर डिक्रीज होगा, सो अगेन अब उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, सॉलिड के ऊपर होगा। वो सॉलिड फर्दर फ्रीज मींस उसका टेम्परेचर फर्दर रिड्यूस होता रहेगा, बट नाउ दिस इज इन सॉलिड स्टेट। नाउ दिस इज हाउ द फ्रीजिंग अकर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप किसी प्योर सब्सटेंस को कंसीडर करते हैं, तो फॉर प्योर सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा था, वो फ्रीज भी उसी सेम टेम्परेचर पे होगा, मींस उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, दे आर सेम फॉर द प्योर सब्सटेंस। किस तरह ये सेम होती है, अब देखिए फॉर एग्जांपल, जस्ट कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ आइस एंड वाटर। तो देखिए आइस जो है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। नाउ जब आइस मेल्ट होके वाटर में जाती है, तो आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि दिस इज द टेम्परेचर एट विच आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। अब अगर आप वाटर की बात करें, मींस इफ यू हैव वाटर एंड यू वांट टू फ्रीज दैट वाटर, तो ये वाटर भी फ्रीज किस टेम्परेचर पे होगा, 0 डिग्री पे। दैट्स व्हाई अगर आप प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो प्योर सब्सटेंस में उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वही उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है, बिकॉज ice and water they are the same type of substance, though means only with the change of state. ice solid form है, water liquid form है। तो अगर आप सेम सब्सटेंस कंसीडर करते हैं, अगर सब्सटेंस डिफरेंट होगा तो देन ये जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन फॉर द सेम सब्सटेंस अगर आप कंसीडर करते हैं, तो जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होंगे वो सेम होंगे। और अगेन सब्सटेंस मस्ट बी प्योर, बिकॉज इम्प्योरिटीज जो होती है वो इस मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को चेंज कर देती है। अगेन क्या चेंज करती है वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस प्रोसेस, कि अगर सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो उसका इस मेल्टिंग या इसकी फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा। नाउ वी मूव टू आवर थर्ड प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन होता क्या है, दिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट। नाउ एज we discussed that this vaporization can be done by two ways, मतलब there are two different ways in which a liquid can be converted into gases। कौन कौन से दो, बॉइलिंग और एवापोरेशन, मतलब ये दोनों प्रोसेस जो है इनमें लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग बॉइलिंग, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे एवापोरेशन से, देन वी विल कम टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम। नाउ अब हम आते हैं स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग को। देखिए बॉइलिंग क्या होता है, इट्स द प्रोसेस इन व्हिच अ लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर्स या लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस स्टेज। नाउ सेम वे जस्ट लाइक मेल्टिंग, इट अकर्स मेल्टिंग जिस तरह हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अकर होती है, सेम लाइक जो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अकर होता है। मींस के आप लिक्विड को अगर बॉईल करना चाह रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल स्टार्ट अप्लाइंग द हीट। इसको आप लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे, जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो इनिशियली ये लिक्विड टेम्परेचर को इसका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, अब वो राइज करता रहेगा, लेकिन बॉइलिंग का प्रोसेस उस वक्त स्टार्ट होगा व्हेन दैट particular temperature will reach to the boiling point of that substance। again different substance की boiling point different होती है, तो जैसे ही substance की वो boiling point reach होगी, then this process of boiling will start। now ये जो boiling process होता है, same way for the melting and freezing, इस प्रोसेस में भी जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो टेम्परेचर गेन हो रहा था, ये टेम्परेचर जो राइज हो रहा था वो राइज होना स्टॉप हो जाता है। दैट मींस कि दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ऑल चेंज ऑफ स्टेट्स, कि जहां पर भी चेंज ऑफ स्टेट अकर होगी, ड्यूरिंग दैट चेंज ऑफ स्टेट जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, वेदर इट्स अ कूलिंग प्रोसेस और अ हीटिंग प्रोसेस, सब में यही होता है कि जब
चेंज ऑफ स्टेट का प्रोसेस अगर हो रहा होता है तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो टेम्परेचर होता है उसमें फर्दर चेंज नहीं आता, ना वो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है. नाउ एज दिस इज अ process in which substance absorbs the energy, that's why this is called a heating process. Now these are the some examples of the commonly used substances, मतलब examples of boiling points of the some commonly used substances. अब आप इसमें देखें water जो है it has a boiling point 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए. इसके अलावा अगर आपको कोई भी गिवन सब्सटेंस अगर कहीं यूज हो रहा है तो you will be given the value for that, ठीक है ना, because water commonly used substance है तो at least you must know what is the boiling point for the water. अब हम आते हैं इसका बॉइलिंग कर्व देख लेते हैं किस तरह होता है. अब देखिए इनिशियली ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेल्टिंग वाला प्रोसेस. नाउ दिस इज अ पोर्शन इन विच water is absorbing the heat from the surrounding. प्रीवियसली हमने यहाँ तक देखा था कि 20 डिग्री या जो भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे आके वाटर का जो टेम्परेचर है वो रुक गया था, उससे फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा था. नाउ इन दिस केस इफ यू अप्लाई फर्दर हीट टू दिस वाटर, बिकॉज ये जो हीटिंग प्रोसेस है तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड द सम एक्सटर्नल एनर्जी. तो जब आप इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वाटर को तो व्हाट दैट थर्मल एनर्जी विल डू, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. मींस के लेट्स से इनिशियली वाटर का जो टेम्परेचर व्हिच वाज एट द रूम टेम्परेचर, लेट्स से दैट वाज 20 डिग्री सेल्सियस. अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से राइज करना स्टार्ट करेगा. अब ये राइज करता रहेगा बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली एब्सॉर्बिंग द हीट. अब जब ये हीट जो है सॉरी ये जो टेम्परेचर है when it will reach to the 100 degree Celsius, so 100 degree Celsius is the boiling point of the water. Again we are discussing particularly for the water. जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होती है, नॉट फॉर ऑल सब्सटेंस 100 होगी. दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द वाटर और प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. So the boiling point of the water is 100 degree Celsius. तो जैसे ही टेम्परेचर 100 को रीच करेगा, now the process of boiling will start. और जैसे ही बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा फर्दर राइज इन टेम्परेचर नहीं होगा. इवन दो यू आर प्रोवाइडिंग द थर्मल एनर्जी, ये वाटर जो है सब्सटेंस जो है ये हीट थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. जब तक ये कंप्लीट वाटर बॉयल नहीं हो जाता फर्दर राइज इन टेम्परेचर नहीं होगा. Now we move to the last process, that is condensation. I'm saying the last process because जो इसके अलावा जो हमने process discuss किए थे sublimation and deposition, तो we are not going to discuss these processes right now. हम सिर्फ ये जो 4 प्रोसेस हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सब्लिमेशन और डेपोजिशन को डिस्कस ना करने का पर्पस ये है, उनमें प्रोसीजर एग्जैक्टली यही होता है, only with the difference कि there are only few substances which can directly change their state from the solid or liquids. That's why उनमें प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगा. That's why we are not going to discuss these processes in detail. अब हम आते हैं what is mean by condensation. Now as condensation जो process होता है, this is the process in which a gas is being changed into a liquid state. मतलब ये कि this is the process which is opposite to the boiling. ये boiling opposite होता है. boiling में क्या होता है, liquid is changing its state to the gas. Same way condensation में जो gas है it changes its state to the liquid state. Now जो remaining points हैं, this is a cooling process because again in this process thermal energy is being released. और जो last point जो हम continuously discuss करें for all those processes कि during this process thermal energy जो means के जो temperature होगा वो change नहीं होगा. means के जो भी change of state होगा चाहे वो melting है, boiling है, freezing है, condensation है, for all those processes temperature जो होता है वो change नहीं होता, it remains constant. Now same way जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि for a pure substance melting and freezing occurs at the same temperature, बिल्कुल उसी तरह अगर आप कोई प्योर सब्सटेंस लेते हैं तो उसकी जो बॉइलिंग होती है मींस कि उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी that will be same as its condensation point. मतलब ये कि जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल होगा उसी टेम्परेचर पे वो जो सेम सब्सटेंस है वो कंडेंस होगा. मींस के कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग they occur at the same temperature for a pure substance. again impurity उसकी जो ये जो boiling point है उसको change कर देती है.
Just like for example, if you have a water in the vapors, so if water is converted into vapors at 100 degrees Celsius, तो same way vapors will convert back to the liquid at 100 degree. मतलब दोनों का जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट, they are same. Now अब हम आते हैं कि देखें, we are continuously saying that for a pure substance ये जो होता है कि जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और उसकी जो है फ्रीजिंग पॉइंट वो सेम है, सेम लाइक उसकी बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट सेम होती है. अब हम देखते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस में इंप्योरिटीज ऐड हो जाए तो वो इंप्योरिटीज उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को किस तरह अफेक्ट करती है. रिमेंबर दिस थिंग, अगर मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगी तो मतलब ये कि फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग सेम टेम्परेचर पर होती है. सेम लाइक उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन वो भी चेंज हो जाएंगे. अब देखते हैं व्हाट these impurities do. impurities क्या कर रही होती हैं कि जो सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज कर देती है. मतलब अगर आप किसी भी प्योर सब्सटेंस में इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाती है. सेम वे उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज कर जाती है. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑन द एडिंग द impurities. अब देखिए, अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो रही है, लोअर हो रही है, तो इसका मतलब है नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की एग्जांपल ले लें तो वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ओनली फॉर द प्योर वाटर. तो अगर वाटर में इंप्योरिटीज ऐड हो जाएंगी तो उस वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से कम हो जाएगी. सेम वे वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है, मींस के अगर हम लिक्विड स्टेट में कंसीडर करें, जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो अगर उस वाटर में इंप्योरिटीज ऐड होंगी तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से राइज कर जाएगी. नाउ दिस इज द इफेक्ट व्हिच इंप्योरिटीज पुट ऑन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ अब हम आते हैं कि देखिए, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ प्रोसेस वी आर डिस्कसिंग, चारों प्रोसेस जो हमने डिस्कस किए हैं, वी डिस्कस दैट ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो अगर नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. अब हम देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है. इवन दो थर्मल एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड या फिर थर्मल एनर्जी बीइंग रिलीज्ड, बट वो थर्मल एनर्जी उस टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करे. बिकॉज जनरली हम ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. सेम वे अगर थर्मल एनर्जी सब्सटेंस से रिलीज हो रही है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए. बट ये जो टेम्परेचर चेंज है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट क्यों अगर नहीं होता. सो व्हाट हैपेंस कि देखिए, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट होता क्या है, सब्सटेंस जो होता है उसकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेकअप हो रही होती है. किस तरह बॉन्डिंग ब्रेकअप हो रही होती है. फॉर एग्जांपल, सब्सटेंस इज इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड की जो बॉन्डिंग होती है दैट इज वीक एज कंपेयर टू द सॉलिड्स. तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, उस सॉलिड की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेकअप हो रही है. मतलब मेल्टिंग प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, सॉलिड्स के जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड ब्रेकअप हो रहे होते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू द लिक्विड. तो होता ये है कि जो एनर्जी आप प्रोवाइड करें ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, that energy is being utilized to overcome the bonding between the molecules of the solid. That's why वो एनर्जी टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो जाती है, टू ब्रेक अप द बॉन्ड्स बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स. सेम वे if you are converting a liquid into gas state, तो again in that case क्या होगा कि जो that energy which you are providing, because इस केस में भी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, to break up the bonds between the liquid molecules. because जब liquid gas state में convert होता है तो gas के molecules में freely moving होते हैं. It means कि they don't have any particular intermolecular forces. तो उस बॉन्डिंग को ब्रेकअप करने के लिए जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी वहां पर कंज्यूम हो जाती है. So that's why we say that during the melting and boiling जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, because these are the two processes जिनको हम कहते हैं हीटिंग प्रोसेस, इनमें आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो थर्मल एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होती है, that is being utilized to break up the bond between the molecules. तो इस तरह ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करती. सेम वे फॉर द रेस्ट ऑफ द टू प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेस थे, मेल्टिंग, सॉरी, फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन. नाउ दीज आर द टू प्रोसेसेस जिनको हम कहते हैं कूलिंग प्रोसेस. कूलिंग प्रोसेस में क्या करता है, सब्सटेंस एनर्जी को रिलीज, मींस के सब्सटेंस जो है वो थर्मल एनर्जी को रिलीज करता है. तो जब थर्मल एनर्जी उसमें से रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये है नाउ बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, बिकॉज थर्मल एनर्जी रिलेट करती है जो है
इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मींस का टेम्परेचर का जो चेंज होता है दैट रिलेट्स टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो इफ द हीट इज बीइंग रिमूव्ड मतलब है कि मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग क्लोजर टुगेदर। तो जब क्लोजर आएंगे तो इसका मतलब है जब वो सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करा होगा तो ड्यूरिंग दैट चेंज ऑफ स्टेट जो एनर्जी उसमें से रिलीज हो रही है दैट एनर्जी वो टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करेगी उस सब्सटेंस के, बल्कि क्या करेगी दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। प्रीवियस जो दो केसेस थे उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी। These are the two processes, freezing and condensation, in which bond breaking takes, bond formation takes place. तो इसका मतलब है जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं या जो एनर्जी सब्सटेंस में से रिलीज हो रही होती है that energy is not affecting the temperature but that energy is utilized in the bond formation between the molecules. That's why temperature क्या होता है during this change of state वो constant रहता है। Now इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, thermal energy is transferred to a solid, first it melts and then boils to produce a gas। ठीक है ना, कंप्लीट प्रोसेस, पहले वो सॉलिड था फिर जब मेल्ट होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो अगेन वो जब बॉयल होगा तो इट मींस इट्स कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट। तो आपने बताना है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द टेंपरेचर इज करेक्ट ड्यूरिंग दिस कंप्लीट प्रोसेस। क्या होना चाहिए, व्हेन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग द टेंपरेचर डज नॉट चेंज, या फिर ऐसा होना चाहिए व्हेन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेंपरेचर इंक्रीजेस, या फिर ऐसा होना चाहिए व्हेन मेल्टिंग द टेंपरेचर इंक्रीजेस बट द बॉइलिंग टेंपरेचर स्टेज सेम, या फिर इसका जो ऑपोजिट होना चाहिए। सो अभी हमने डिस्कस किया है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब वो चेंज ऑफ स्टेट कोई भी हो सकती है, मेल्टिंग भी हो सकती है, बॉइलिंग भी हो सकती है, फ्रीजिंग भी हो सकती है, कंडेंसेशन भी हो सकती है। तो ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ प्रोसेस टेंपरेचर जो होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ अब हम आते हैं, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, चार प्रोसेस हमने डिस्कस किए हैं, इनमें सब्सटेंस को लेके हम उसकी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सॉलिड स्टेट, उसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे हाउ दिस हीटिंग प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। मतलब हम कंसीडर करेंगे सॉलिड स्टेट को और फिर एंड करेंगे हम गैस स्टेट पे। तो ये कंप्लीट जो उसका हीटिंग प्रोसेस है किस तरह का होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द सब्सटेंस व्हिच इज इन सॉलिड स्टेट। आपके पास एक सॉलिड है, आप उस सॉलिड को प्रोवाइड करते हैं थर्मल एनर्जी। अब जब आप थर्मल एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इनिशियली दिस सॉलिड विल स्टार्ट एब्सॉर्बिंग द थर्मल एनर्जी। तो उस थर्मल एनर्जी का इफेक्ट ये होगा, उसका टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है ना, जब भी आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इनिशियली उसका इफेक्ट ये होता है कि इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर। तो जब इसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा तो आफ्टर सम टाइम it will reach at a point which is called the melting point. This is we are discussing for the general substances. पहले हमने सिर्फ वाटर का केस कंसीडर किया था, now we are discussing के जो जितने भी substance होते हैं ये प्रोसेस किस तरह का होता है। Now this solid has reached its melting point. अब जैसे ये melting point को reach करेगा इसका टेम्परेचर, अब ये प्रोसेस अब मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसी मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अब जो फर्दर राइज इन टेम्परेचर होगा वो नहीं होगा, इवन दो यू आर प्रोवाइडिंग द हीट, बट ये हीट क्या करेगी, दिस हीट विल बी यूटिलाइज्ड टू ब्रेक अप द बॉन्ड्स ऑफ दीस सॉलिड मॉलिक्यूल्स। उसके प्रीवियसली टेम्परेचर राइज तो कर रहा था बट स्टिल वो बॉन्डिंग अभी तक ब्रेक नहीं हुई थी, सब्सटेंस वाज इन सॉलिड स्टेट। अब क्या हो रहा है सब्सटेंस में जो है नाउ दिस energy which you are providing, this energy will be utilized to break up the bonds between these solid molecules। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेकअप होते जाएंगे, जिन जिन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेकअप हो रहे हैं दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। इसका मतलब ये है इन दिस पोर्शन सब्सटेंस में दोनों स्टेट होंगी, लिक्विड भी होगी सॉलिड भी होगा, बिकॉज जो सब्सटेंस या जो मॉलिक्यूल जिनकी बॉन्डिंग ब्रेकअप होती जा रही है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट स्टिल एक साथ सबकी नहीं होगी, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ सॉलिड स्टेट एज वेल। तो इन दिस पोर्शन दोनों स्टेट्स होंगी, सॉलिड स्टेट भी लिक्विड स्टेट। अब ये बॉन्ड ब्रेकअप होते रहेंगे एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, ऑल बॉन्ड्स मींस कि सॉलिड्स के जितने भी बॉन्ड्स हैं दे आर टू बी ब्रोकन, सारे बॉन्ड्स ब्रेकअप हो गए, all the solid is being converted into liquid state. Now what will happen if you continuously providing the heat, मींस कि आप हीट कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन नाउ, ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, बिकॉज मेल्टिंग का प्रोसेस कब होता है, व्हेन अ सॉलिड इज चेंजिंग इट्स स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। अब जब ये पूरे का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो ये मेल्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब मेल्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इफ यू आर स्टिल प्रोवाइडिंग द हीट तो दैट हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर अगेन।
अब ये हीट क्या करेगी, अब ये जो लिक्विड स्टेट है इस लिक्विड के टेम्परेचर को राइज करेगी, लिक्विड इज बीइंग हीटेड, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। इसका टेम्परेचर राइज करने का मतलब है इन मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वो राइज इंक्रीज होती रहेगी। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, इनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती रहेगी, इनकी सेपरेशन भी इंक्रीज होती रहेगी। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस लिक्विड विल रीच इट्स टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये कि अब ये लिक्विड क्या करेगा, अपनी बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर जाएगा। अब जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट को रीच करेगा, जो प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग है दैट विल स्टार्ट। अब बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगेन बॉइलिंग इज अ चेंज ऑफ स्टेट, तो जैसे ही चेंज ऑफ स्टेट अगर होगी, दोबारा जो टेम्परेचर था, जो भी उसकी बॉइलिंग पॉइंट थी, जितना भी उसकी बॉइलिंग पॉइंट थी, उस पे आके स्टॉप हो जाएगा, उसमें फर्दर राइज नहीं होगा। देन व्हाट विल हैपन, दैट हीट व्हिच यू आर प्रोवाइडिंग, दैट हीट विल बी यूटिलाइज्ड to break up the bond between the liquid molecule। जिस तरह पहले वो solid molecule को bond break up करने के लिए यूटिलाइज हो रही थी, now this heat is utilized to break up the bonds between the liquid molecules। तो liquid molecules के जो bonds break up होते जाएंगे, तो what will they do, they will be converted into the gas state। इसका मतलब वो गैस स्टेट का मतलब है नाउ दे विल एस्केप आउट, वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर एस्केप आउट हो जाएंगे। जब गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अगेन इन दिस पोर्शन यू विल बी हैविंग टू स्टेट्स, लिक्विड भी होगी गैस भी होगी, बिकॉज जो जो मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे वो गैस स्टेट में होंगे और रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स विल बी इन लिक्विड स्टेट एज वेल। अब क्या होगा, जब ये पूरे के पूरे जो जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, दिस प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग विल कंप्लीट। ये बॉइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये बॉइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इफ यू आर स्टिल प्रोवाइडिंग द हीट, तो व्हाट विल दैट हीट डू, this will increase the internal kinetic energy and increase the temperature of the gas molecules। so this is how a complete heating process takes place। मतलब आपने solid लिया, आप उसको हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, ड्यूरिंग जहां जहां चेंज ऑफ स्टेट आएगा, मींस के जस्ट लाइक यू कैन सी, जहां जहां चेंज ऑफ स्टेट आ रहा है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा, उसमें फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, और इस तरह जो है सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है। Now this is how a heating process takes place। Same way जो cooling process होता है वो भी बिल्कुल इस तरह होता है, only with the difference कि cooling process में टेम्परेचर जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। मींस के लेट्स कंसीडर कि if you have a gas, initially substance में gas state, आप अब क्या कर रहे हैं, इसके टेम्परेचर को लोअर करें, इसकी इसमें से हीट को रिलीज करें। तो देखिए जब इसमें से हीट रिलीज होगी, तो इनिशियली व्हाट विल हैपन, इसका जो टेम्परेचर है वो फॉल करना स्टार्ट करेगा, टेम्परेचर फॉल करता रहेगा, फॉल करता रहेगा। जब ये टेम्परेचर पहुंचेगा अपनी कंडेंसेशन पॉइंट को, विच इज सेम एज बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज जनरली हम कंडेंसेशन पॉइंट टर्म यूज नहीं करते, हम बॉइलिंग पॉइंट ही कह रहे होते हैं, बट दैट इज द सेम एज कंडेंसेशन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कूलिंग प्रोसेस, सो व्हाट पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। मींस के यहाँ पर जब सब्सटेंस अपनी कंडेंसेशन पॉइंट विच इज इक्वल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, नाउ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विल स्टार्ट। तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, तो फर्दर चेंज इन टेम्परेचर विल स्टॉप। अब फर्दर टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा, टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा, एंड व्हाट विल हैपन, दैट गैस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ये जो गैस होगी ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगेन इन दिस पोर्शन यू विल बी हैविंग बोथ ऑफ टू स्टेट्स, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था। अब ये गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सो दिस विल टेक सम टाइम। जब ये कंप्लीट गैस मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएंगे, नाउ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विल फिनिश। कंडेंसेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, still heat is being removed from the substance, still उसमें से जो सब्सटेंस में से वो हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज होने का मतलब ये, अब ये जो लिक्विड स्टेट है इसका टेम्परेचर फर्दर फॉल करना स्टार्ट करेगा। अब ये टेम्परेचर फॉल करता रहेगा, करता रहेगा, कब तक करेगा, जब लिक्विड अपनी कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट को रीच करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। जैसे ही लिक्विड अपनी फ्रीजिंग पॉइंट को रीच करेगा, नाउ द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग विल स्टार्ट। फ्रीजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कब तक, जब तक पूरे का पूरा लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए, या फिर उसकी जो बॉन्डिंग से वो ब्रेक जो उसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कंप्लीट ना हो जाए। मींस के लिक्विड से जब सॉलिड में आएगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो जब तक कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो जाती, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा।
जब सारे का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, नाउ दिस फ्रीजिंग प्रोसेस विल फिनिश। अगेन इफ हीट इज बीइंग रिमूव्ड, तो सॉलिड का जो टेम्परेचर है दैट विल फर्दर डिक्रीज, ठीक है ना, ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है। नाउ अब हम आते हैं वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन दीज कर्व्स, एक आप चीज ऑब्जर्व करें, देखें सेम वे ड्यूरिंग द, जिस तरह हमने हीटिंग को डिस्कस किया था, हीटिंग में भी यही हो रहा है, कूलिंग में भी यही हो रहा है। आप देखें अगर आप इनके स्लोप को कंपेयर करें तो देखें जब गैस स्टेट है देयर इज अ क्वाइट शार्प स्लोप, मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत रैपिडली फॉल कर रहा है। लेकिन जब लिक्विड स्टेट है तो उसमें जो टेम्परेचर में फॉल आ रहा है that is slower as compared to the gas state. Same way when it is in solid state, इसमें जो टेम्परेचर में फॉल आ रहा है वो तीनों में से कम है, सबसे कम है। अब देखते हैं कि what is the reason behind that। अब देखें जब सब्सटेंस गैस स्टेट में है तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होती है। सो दैट मीन्स के यहाँ पर टेम्परेचर को फॉल करने के लिए या उसकी जो एनर्जी है that is not being utilized because already molecules are freely moving, so they will lose their energy at a faster rate। वो energy faster rate पे lose करेंगे, that's why उनमें जो change in temperature होगा वो rapid होगा। इसी तरह जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे तो देखिए लिक्विड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं दैट आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द गैस मॉलिक्यूल्स। तो नाउ अब क्या होगा कि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी that will be less as compared to the gas state। मतलब जितने टेम्परेचर मींस के जितना क्विकली टेम्परेचर फॉल कर रहा था ड्यूरिंग गैस, लिक्विड में ऐसा नहीं होगा, उससे टेम्परेचर फॉल कम होगा बिकॉज गैस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो एनर्जी को इतनी जल्दी रिलीज होना नहीं देंगे तो इसका मतलब इसमें टेम्परेचर में जो फॉल आएगा दैट विल बी, उसका जो फॉलिंग रेट है दैट इज लेस कंपेयर्ड टू गैस। सेम वे जो सॉलिड स्टेट होगी तो सॉलिड स्टेट में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो यहाँ पर हीट को रिलीज होने के लिए मींस के that they will not allow to release heat at the faster या at the rate at which it was releasing in the liquid या फिर gas state में। That's why यहाँ पर आप देखिए सबसे जो decrease in temperature है वो सबसे कम हो रहा है, जो rate of decreasing temperature है वो सबसे कम हो रहा है। Same like मींस के अगर हम इसको कंपेयर करें हीटिंग कर्व से, देखिए हीटिंग में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। अगर आप इनकी ग्राफ्स की शार्पनेस को कंपेयर करें तो देखिए जब सॉलिड में there is a very slight rate of increasing of the temperature, लेकिन जब लिक्विड में आ गया तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ज्यादा हो गया। सेम लाइक जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो किसमें, गैस में। रीजन इज अगेन सेम, यहाँ पे बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो दे विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनका टेम्परेचर राइज करने के लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो इंक्रीज इन टेम्परेचर का रेट होता है वो स्लोअर होता है, सबसे कम, और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। Now this is one example related to the change of state। आपने बताना है ice at -10 degrees Celsius is heated until it is water at +10। आपने उसका ग्राफ बताना है कि किस प्रोसेस के थ्रू या उसका कौन सा ग्राफ होगा जो इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें आइस इनिशियल टेम्परेचर उसका -10, अब वो जब वाटर में कन्वर्ट होगी +10, तो इस टेम्परेचर के दरमियान आइस के जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है जब टेम्परेचर 0 को पहुंचेगा आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, और जब मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस टेम्परेचर विल नॉट चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब तक कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं होती तो टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज फर्दर। सो अब अगर हम कंपेयर करें तो देखिए दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब in option C again there is a constant temperature shown, but ये constant temperature कब है, after temperature of +10। so that means कि ये तो होगा water state में। टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट होगा, जब सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है। स्टेट कहाँ पर चेंज करेगा, बिकॉज आइस कहाँ पर मेल्ट होती है, दैट इज एट 0 डिग्री। सो दिस इज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट्स। सो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। उसके बाद जब वो कंप्लीट आइस मेल्ट हो जाएगी फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होगा अप टू 10 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, which substance in the table is liquid at 20 डिग्री। आपने बताना है कौन सा सब्सटेंस, आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है,
आपने ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से देख के बताना है कौन सा सब्सटेंस है विच इज एट लिक्विड एट 20 डिग्री, तो आपने उसकी बतानी है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि सब्सटेंस अगर 20 डिग्री पर लिक्विड है तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी। तो इसके लिए जस्ट कंसीडर दिस ग्राफ, ठीक है, दिस इज इससे हमें इजीली पता चल जाएगा। अब देखिए अगर वो लिक्विड है 20 डिग्री, पहले तो हम देखते हैं कि वो लिक्विड कहाँ कहाँ हो सकता है। या तो लिक्विड हो सकता है इस पॉइंट पर, बिकॉज यहाँ पे जब सॉलिड अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है तो देयर इज अ लिक्विड, ठीक है ना। या फिर लिक्विड इन बिटवीन यहाँ पर कहीं होगा, या फिर उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर भी हो सकता है, बिकॉज स्टिल सब्सटेंस कैन हैव इट्स लिक्विड स्टेट। तो इसका मतलब है ये जो 20 डिग्री पर अगर लिक्विड है तो इसका मतलब है या तो 20 डिग्री उसकी मेल्टिंग पॉइंट हो सकती है, या उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो सकती है, या फिर ये 20 डिग्री इन बिटवीन दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहीं बीच में होगा। अब देखिए गिवन ऑप्शंस में से कहीं पे भी मेल्टिंग और बॉइलिंग 20 डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 20 डिग्री दैट विल बी इन बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, बिकॉज इसके अलावा जो लिक्विड स्टेट है वो सिर्फ यहाँ पर ही होगी। इन दो का अगर हम इसके इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज दे आर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इंक्लूड नहीं कर रहे तो दैट मीन्स के ओनली जो 20 डिग्री सेल्सियस है दैट विल बी इन बिटवीन दैट। अब यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट कि अगर इफ दिस इज द 20 डिग्री सेल्सियस तो इस सब्सटेंस की जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट मस्ट बी लोअर देन द 20, इसी तरह इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द 20। अब सिंपली हमने वो ऑप्शंस ढूंढने जिसमें मेल्टिंग पॉइंट 20 से स्मॉलर होनी चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री से ग्रेटर। सो अगर हम अपने ऑप्शंस को कंपेयर करें तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन बी इन विच melting point is -39 which is below the 20, or boiling point is 357 that is above the 20. So this can be the correct melting and boiling point. Now next question is that some ice cubes are taken from a deep freeze and placed in a metal container. The container is heated at a constant rate and readings of the temperature and the time are taken. आप कंटेनर को कंटिन्यूसली हीट अप कर रहे हैं, ठीक है ना। The results are recorded on the graph which temperature corresponds to 0 degree. अब देखें 0 डिग्री क्या होता है, that is the melting point of the ice. आपने आइस ले ली तो what will happen, अगर आप जिस कंटेनर में आपको प्लेस कर देते हैं और कंटेनर कंटिन्यूसली हीट अप हो रहा है तो इसका मतलब आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट जब रीच होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना स्टार्ट होगा, मींस कि उस ड्यूरिंग दैट टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। So 0 degree is the melting point of ice. That means that this is the temperature which is being represented at 0 degree. Yeah, this is the temperature which is the melting point of the ice. तो ये तो हमने करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर लिया। Now one more थोड़ा हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्परेचर तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है। What will happen at this point? अब देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, अगर ये कंटेनर को आप मींस के जिस मेटल कंटेनर में आपने आइस क्यूब डाला है उसको आप कंटिन्यूसली हीट अप नहीं कर रहे होते, सिंपली आप ये करते आइस क्यूब को निकाल के फ्रीजर से बाहर रख देते। मींस के आइस क्यूब को फ्रीजर से जब आप बाहर रखेंगे तो इट विल स्टार्ट गेनिंग द थर्मल एनर्जी, उसका टेम्परेचर राइज करेगा। अगेन जब उसकी मेल्टिंग पॉइंट रीच होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जब वो पूरे के पूरे आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, पूरी आइस मेल्ट होगी, दोबारा उसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा और वो उस वक्त तक राइज करता रहेगा जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा रूम टेम्परेचर पे। तो ये कंडीशन एक हो सकती थी, बट इन दिस कंडीशन इट्स मेंशन्ड कि यू आर कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग द हीट। इसका मतलब ये है कि वो उस आइस का, उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा, वो रूम टेम्परेचर पे स्टॉप नहीं होगा, बिकॉज कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करने का मतलब ये उस वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा। फाइनली इट विल रीच टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज होते होते बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। देन जब बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा देन टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। इस केस में ये बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन अगर नॉर्मल स्टेट में अगर ये मेंशन नहीं होता कि यू आर प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल हीट तो देन दिस पॉइंट कुड बी द रूम टेम्परेचर। नाउ अब हम आते हैं एज वी हैव डिस्कस्ड ऑल फोर प्रोसेसेस। अब हम देखते हैं जो वेपराइजेशन के दो प्रोसेस है, बॉइलिंग एंड एवापोरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दैट, ठीक है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए फर्स्ट थिंग इज दैट जो एवापोरेशन होती है इट अकर्स एट एवरी टेम्परेचर। रिमेंबर दिस थिंग, एवापोरेशन होता क्या है,
This is the process in which more energetic molecules leave the surface of the liquid. जो surface of the liquid होती है उस पे जो molecules होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है as compared to the molecules which are at the bottom, जिसकी वजह से वो escape out होते हैं. तो ये जो process होता है escaping out of the molecules of the which are at the surface of the liquid, that process is called evaporation. और boiling किस तरह होती है अभी हमने डिस्कस कर लिया. Now जो evaporation होती है it occurs at every temperature. This is very important point. जबकि जो boiling होती है that occurs only at a particular temperature, जिसको हम कहते हैं boiling point. ठीक है ना. इसका मतलब ये, इस पॉइंट को हम समझने के लिए अब देखें अगेन, जब हम इस ग्राफ का हीटिंग कर्व हमने डिस्कस किया था, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर ये evaporation होगी, कहाँ boiling होगी. अब देखें when substance was in solid state, तो जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे at its melting point, substance started converting into liquid. तो जैसे ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो इसका मतलब है अब सब्सटेंस के लिक्विड में आते ही एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. मींस कि एवापोरेशन कहां से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. रिमेंबर दिस थिंग, एवापोरेशन occurs at every temperature. जहां लिक्विड होगा वहां एवापोरेशन होगी, चाहे उस लिक्विड का टेम्परेचर लो हो चाहे उस लिक्विड का टेम्परेचर हाई हो. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर की एग्जांपल, आइस और वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो आइस कहां पर मेल्ट होती है? 0 डिग्री पर. तो 0 डिग्री पर आइस कन्वर्ट होगी वाटर में. तो जैसे ही वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी एवापोरेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन जो रेट ऑफ एवापोरेशन होती है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डायरेक्टली. मतलब ये कि एट दिस पॉइंट अगर टेम्परेचर उस लिक्विड का लो है तो रेट ऑफ एवापोरेशन बहुत लो होगा, लेकिन एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. फिर वो इंक्रीज होता रहेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसका मतलब है एवापोरेशन इस पॉइंट से स्टार्ट हुई. अब आप देखें यहाँ पे भी लिक्विड है, एवापोरेशन चलती रहेगी, फिर लिक्विड है, यहाँ पर भी एवापोरेशन होती रहेगी. अगेन ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस, मींस कि कहां से ये स्टार्ट हुई? जहां से मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मेल्टिंग, ड्यूरिंग द मेल्टिंग भी एवापोरेशन अकर हो रही है. अगेन जब पूरा लिक्विड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, स्टिल एवापोरेशन विल कंटिन्यू. अगेन जब लिक्विड में बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, बिकॉज दिस इज द पॉइंट एट विच बॉइलिंग स्टार्ट्स. So during the boiling point, evaporation means क्या कर होती रहेगी. Again, this is very important point. ये confusion होती है कि during boiling evaporation होगी या नहीं होगी. So remember this thing कि evaporation depend करती है liquid पे. जहां भी liquid होगा वहां evaporation अगर होगी. तो अब क्या होगा? evaporation किस point से start हुई? इस point से लेके कहां तक जाएगी? इस point तक, जब completely liquid जो है वो गैस, देखें जब पूरे का पूरा गैस में convert हो गया, अब there is no more liquid, means that there is no more evaporation. तो इसका मतलब evaporation occurs at every temperature. लिक्विड के हर टेम्परेचर पर evaporation occur होती है, लेकिन वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेट ऑफ evaporation भी इंक्रीज हो जाएगी. अब अगर हम बॉइलिंग को देखें, बॉइलिंग occurs particularly at the boiling point. जब तक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस की रीच नहीं होगी बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा. तो बॉइलिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर होती है जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं. अब देखिए ना, बॉइलिंग में टेम्परेचर चेंज भी नहीं हो रहा. जब तक बॉइलिंग का प्रोसेस है टेम्परेचर कांस्टेंट है, मींस इट इज अकरिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर है? बॉइलिंग. लेकिन एवापोरेशन अकर्स एट एवरी टेम्परेचर. नाउ इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब देखिए क्वेश्चन इज दैट अ हॉट लिक्विड is poured into the beaker. The graph shows how its temperature changes at cool towards the room temperature. एक लिक्विड है, आप उसके टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहे हैं, उसका जो ग्राफ आपको गिवन है. अब आपने इस ग्राफ को ये बताना है व्हाट इज हैपनिंग एट रीजन एक्स. अब देखिए होगा क्या, लिक्विड का टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, इस पॉइंट पर आके टेम्परेचर इज कांस्टेंट. जब टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट मींस के दिस इज द पॉइंट एट व्हिच सम चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग. अब चेंज ऑफ स्टेट क्या होगी? लिक्विड का टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो इट मींस के फ्रीजिंग इज बीइंग अकर्ड, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन. तो ये तो क्लियर हो गया कि सॉलिडिफिकेशन यहाँ पर होगी. अब अगर हम अपने ऑप्शंस को कंपेयर करें तो ऑप्शंस में एक ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है बॉइलिंग एंड एवापोरेशन, बी है कंडेंसेशन ओनली, सी इज एवापोरेशन ओनली, डी सॉलिडिफिकेशन एंड एवापोरेशन. अब आप देखें होगा क्या. सॉलिडिफिकेशन तो हो रही है, इसके साथ क्या होगा? एवापोरेशन विल आल्सो बी देयर. क्यों एवापोरेशन होगी? बिकॉज जब सॉलिडिफिकेशन हो रही होगी तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगेन जो लिक्विड है दैट विल बी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट. इसका मतलब स्टिल देयर विल बी सम लिक्विड. तो जहां पर भी लिक्विड होगा तो उसके साथ एवापोरेशन भी होती रहेगी.
तो इसका मतलब इन दिस पोर्शन जनरली हमें ये लगता है देयर विल बी अ सॉलिडिफिकेशन, बट along with the solidification there will also be an evaporation. So option D is the correct. Now the next difference between evaporation and boiling is that evaporation occurs at the surface of the liquid only, but जो boiling होती है it occurs throughout the liquid. अब ये कैसे होता है इसको देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं evaporation की। देखिए evaporation कैसे occur होती है when these more energetic molecules leave the surface of the liquid. तो इसका मतलब है जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं या बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड होते हैं उन पे एवापोरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ जो एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर हो रहा होता है, थ्रू आउट द लिक्विड नहीं हो रहा होता। जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं उन पे एवापोरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है, एवापोरेशन सिर्फ सरफेस पे अकर होती है। ऑन अदर हैंड अगर हम कंसीडर करें बॉइलिंग को, देखिए बॉइलिंग में होता क्या है, फॉर द बॉइलिंग यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी। आपको एवापोरेशन जो होती है इसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, इट अकर्स एट एवरी टेंपरेचर, ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके एवापोरेशन अकर होती है। बट फॉर बॉइलिंग यू हैव टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल एनर्जी। तो अब देखिए जब आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इनिशियली इस एनर्जी का इफेक्ट जो होता है दैट इज एट द बॉटम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एट द बॉटम। जब वो हीट अप होते हैं तो वो राइज करते हैं, ऊपर से कोल्ड मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो दिस प्रोसेस इज द कंडेंसेशन। मतलब ये कन्वेक्शन, मतलब ये कि बॉइलिंग में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन का प्रोसेस अकर होता है। और कन्वेक्शन का प्रोसेस किस तरह अकर होता है कि जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं दे आर राइजिंग, ऊपर से कोल्ड मॉलिक्यूल आर फॉलिंग। तो इसका मतलब ये प्रोसेस, ये जो हीटिंग प्रोसेस है ये थ्रू आउट द लिक्विड अकर होगा। जब ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को रीच करता है दैट मींस के एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये कंप्लीट लिक्विड इक्वली हीट अप हो चुका होता है। सो दैट्स व्हाई जो बॉइलिंग का प्रोसेस है दैट happens या that occurs throughout the liquid, उसमें सारे के सारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एवापोरेशन में सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट जो एवापोरेशन होती है उस दैट occurs only at the surface, whereas जो बॉइलिंग होती है that occurs throughout the liquid. Now the next difference is that in evaporation no bubbles are formed, whereas in boiling bubbles are formed. अब देखते हैं कि ये बबल होते क्या और इनकी फॉर्मेशन क्यों होती है। अब देखिए इफ वी कंसीडर द एवापोरेशन, एवापोरेशन में क्या होता है कि एवापोरेशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज मींस के जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू दीस वेपर्स। मतलब ये कि जो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उनका जो प्रेशर है या इन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर बीइंग एस्केप्ड इनका जो प्रेशर है दैट इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एयर जो होती है कंटिन्यूअसली इस लिक्विड को प्रेस कर रही होती है, ये मॉलिक्यूल सिर्फ इसलिए एस्केप आउट करें दे आर हैविंग द मोर एनर्जीज। तो इस केस में जो एयर इनको प्रेस कर रही है दैट वोंट अलाउ टू प्रोड्यूस द बबल्स, वो बबल्स को प्रोड्यूस होने नहीं देती। बट बॉइलिंग में क्या होता है, अब देखिए बॉइलिंग में होता है कि जब आप लिक्विड को हीट अप करते हैं when it reaches to its boiling point, इसका मतलब है liquid molecules are being converted into the gas molecules, या जो water अगर हम कंसीडर कर लें तो water के जो molecules हैं they are being converted into the vapors। तो vapors जो होते हैं they contain air, ये जो vapors होते हैं they are the means के these are the water particles in the form of air या gas। तो गैस के फॉर्म में जब होते हैं तो इसका मतलब है अगर हम कंपेयर करें डेंसिटी ऑफ गैस को लिक्विड से, तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन द गैस। तो इसका मतलब ये होता है कि इनका जो प्रेशर होता है वो कम होता है। मींस के इस केस में क्या होता है कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज आल्सो द प्रेशर ऑफ एयर, वेपर प्रेशर वेपर्स भी हैं दे आर आल्सो द मींस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड व्हिच आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, मींस के दोनों जो है गैस फॉर्म में होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गैस होता है, एयर का प्रेशर होता है, और ये वेपर्स ये भी गैस फॉर्म में होते हैं। तो दैट मींस के इन दोनों का जो प्रेशर है वो इक्वल होता है। तो इक्वल प्रेशर का मतलब होता है दैट इफेक्ट इज कैंसिल्ड आउट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल हीट अप हो रहे हैं, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दे जस्ट लीव द गैप्स इन बिटवीन देम, और उस गैप्स में होता क्या है दैट इज द एयर इनसाइड दीस बबल्स। सो दिस इज द रीजन कि एवापोरेशन में बबल फॉर्मेशन नहीं होती जबकि बॉइलिंग में बबल फॉर्मेशन होती है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट जो एवापोरेशन होती है
takes energy from the surrounding because इसको कोई external energy required नहीं होती, but for the boiling external energy must be provided. जब तक आप external energy provide नहीं करेंगे boiling का process start नहीं होगा. और last difference is that जो evaporation होती है that is a slow process because it is taking place only on the surface, whereas जो boiling का process होता है it's a fast process because it is happening during the it is happening throughout the liquid. मीन्स के evaporation start boiling से पहले होता है लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जबकि बॉइलिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर आके स्टार्ट होती है, लेकिन जब स्टार्ट होती है देन दिस बॉइलिंग इज फास्टर देन द evaporation. Now this is all about this lecture. I hope your concepts are clear. If you still have any difficulty, कोई भी concept आपको during this video आपको clear नहीं हो रहा, या if you have any other question related to the any topic of physics, you can contact me. Inshallah, see you very soon with some more topics. Allah Hafiz. Have a nice day.